मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोग जय में चलना चाहते हैं? अरुणाचल दिखाओ मुझे हाथ। ओके, जय में चलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। There is no shortcut to living in victory. कई लोगों को यह पसंद नहीं है Some people don't like that क्योंकि उन्हें शॉर्टकट चाहिए होता है। because they are looking for a shortcut. जब वो स्कूल जाते थे तो मम्मी से अपना होमवर्क करा लिया, When they go to school, ask mama बड़े to do भाई the से homework, होमवर्क करा लिया। elder brother to do the homework. परमेश्वर के राज्य में आपका होमवर्क आपको खुद करना पड़ेगा अगर जय में चलना है तो। In the kingdom of God, you will have to do your homework if you want to live in victory. You cannot walk in victory by the faith of your pastor, आप जय में नहीं जी सकते अपने पास्टर के विश्वास faith of से, your husband, अपने पति के विश्वास faith से, of your wife. अपनी पत्नी के विश्वास से। No. You will नहीं, have नहीं, to नहीं। develop your own faith. आपको अपना खुद का विश्वास मजबूत करना होगा। जय सर पे हाथ रख के रखवा के नहीं आती। Victory does not come by laying hand on the head. कई विश्वासी हैं Some वो believers, अपने शहर के किसी पास्टर को नहीं छोड़ते। they don't spare any pastor in their city. पास्टर जी, Oh, pastor जी, हाथ फिर रख। दूसरे पास्टर जी, Then second pastor जी, फिर तीसरे पास्टर जी, third pastor जी, फिर चौथे पास्टर जी। fourth pastor जी। जय का तो पता नहीं मगर सारे बाल उड़ जाते हैं सर के। Don't know about victory, but they lose all their hair. Victory cannot be imparted. जय ऐसे बांटी नहीं जा सकती। I cannot give you my victory. मैं आपको अपनी जय नहीं दे I सकता। can teach you how I got that victory. मैं आपको सिखा सकता हूँ मुझे जय कैसे मिली है। And when you apply the same principles, जब आप वही करते हो, you will get your own victory. आपको आपके लिए जय मिल जाएगी। So अगर आपको जय में चलना है, So if you want to walk in इस victory, बात को आज रात समझ जाओ अरुणाचल, understand this tonight, Arunachal. एक ही तरीका है, There is only one way. परमेश्वर का जीवित वचन, The living word of God. परमेश्वर का जीवित वचन, The living word of God. परमेश्वर का जीवित वचन, The living word जो of God. आत्मा में दो धारी तलवार है, Which is a sword in the spirit, a double-edged sword. आपको वचन को अपने अंदर भरना पड़ेगा। You have to fill the word in you. हर रोज, Every ताकि day. जब शैतान आपके विरोध में आए तो आपके अंदर से परमेश्वर का वचन निकलने लग जाए। When the devil comes against you, the word of God starts to come out of you. यीशु ने प्रार्थना करते हुए हमें सिखाया कि रोज की रोटी हमें दे। वो केवल गेहूं और बाजरे की रोटी की बात नहीं कर रहा है। Jesus said, "Give us our daily bread." He's not talking about the bread we eat. He's talking about manna, वो उस मन्ना की बात कर रहा the है, spiritual food. वो आत्मिक खाना। क्योंकि मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। Matthew 4:4 says, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." इसीलिए ध्यान से सुनो, So hear carefully. कितने ऐसे क्रिश्चियन हैं There are many Christians who are dead spiritually. जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। They are in a religion called Christianity, वो एक धर्म में है जिसका नाम ईसाई धर्म है, but they are dead. लेकिन वो मरे हुए हैं क्योंकि केवल शारीरिक रोटी खाते हैं। because they just eat physical bread. Can you put, yeah. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, यानी केवल रोटी खाओगे तो शरीर तो जीवित रहेगा, मगर अगर आत्मा को जीवित रखना है तो परमेश्वर का वचन अपने अंदर डालना पड़ेगा। Man shall not live by bread alone. If you eat physical bread, you will keep your body alive. But if you want to keep your spirit alive, you have to put the word in your spirit. Come on, for a moment, just keep your right hand on your heart. क्षण भर के लिए अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे Close your रखो, eyes अपनी आंखें बंद करो and say, Holy और Spirit, कहो, पवित्र आत्मा, make me a lover of God's word. मुझे परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनाओ। Make me a lover of God's word. मुझे परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनाओ। I will not despise God's word. मैं परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं समझूंगा। I want to honor God's word. मैं परमेश्वर के वचन का आदर करना Fill चाहता हूँ। my heart with a deep hunger for God's word. मेरे दिल को परमेश्वर के वचन की गहरी भूख से भर दो। Amen. आमीन। मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद यही है, not signs and wonders. My biggest purpose of coming here, चिन्ह चमत्कार नहीं है। No, This is my purpose. we don't focus much on signs and wonders. हम चिन्ह चमत्कार पे ज्यादा Signs and focus नहीं wonders करते। follow every believer. चिन्ह चमत्कार हर एक विश्वासी के पीछे पीछे We चलते are हैं। not after signs and wonders. हम चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागते। No, नहीं, I have not come here for that. मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ। I have come मैं आया so हूँ that Arunachal ताकि will अरुणाचल become lover of God's word.
ताकि अरुणाचल परमेश्वर के वचन का प्रेमी बन जाए। आमेन। क्योंकि ऐसी मीटिंग में आप आओगे, लोग चंगे हो जाएंगे, मगर लाइफ में अगर जय चाहिए, पूरी लाइफ में अगर विक्ट्री चाहिए, दिस इज द सीक्रेट। The word of the living God in your mouth is the secret. Because you come in a meeting like this and you get healed, but if you want victory in your entire life, ये उसका रहस्य है। जीवन भर जय में जीना है तो ये रहस्य है। Not just signs and wonders. सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं, but the word. वचन, word. वचन। अगर आप वचन का आदर करोगे, if you honor the word, you will never have to run after signs. आपको कभी चिन्ह के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। You will become a sign and a wonder to this generation. आप खुद एक चिन्ह बन जाओगे इस पीढ़ी के लिए। Amen. आमेन। मैं आज तक अपने जीवन में एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है और अपने जीवन में परिस्थितियों के नीचे दबा हुआ है। I have never met anyone that honors the word of God and is buried under circumstances. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, Man shall not live by bread परमेश्वर alone, के मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। but by every word that proceeds out of the mouth of यीशु God. ने प्रार्थना करना जब सिखाया तो उसने कहा, हे परमेश्वर, आज की रोटी मुझे दे। When Jesus taught his disciples how to pray, he said, "Hey, oh God, give our daily bread to us." इसका मतलब हर रोज जब आप वचन पढ़ो, That means when you read the word every तो day, इसको एक रीति रिवाज की तरह ना पढ़ो। do not read it like a ritual. Okay, every morning I have to read 3 chapters. Okay, that's a good thing. So हर सुबह मुझे 3 चैप्टर पढ़ना है, अच्छी बात है। No, no. नहीं, नहीं। When you read the word, जब आप वचन पढ़ते हो, you say, Father, आप कहो, पिता, speak to me. मुझसे बात करो, Speak to me. मुझसे बात करो, Because God speaks through His word. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। आप जानते, मैं जो लोग नहीं जानते यहाँ पे, मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ। Those of you who do not know, I was born in a Hindu Rajput family. मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। I did not know the Lord Jesus. और जब मुझे एक ऐसी बीमारी थी And when जिसका कोई इलाज नहीं था, when I had an incurable disease, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था, I was pursuing electronics and communication engineering. और मुझे वो इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। And I had to leave that engineering because I fell ill. उस समय मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूंगा क्योंकि आप बिल्कुल जीवन जीरो हो चुका था। At that time, I decided I will commit suicide because my life had become nothing. मैंने कभी बाइबल अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी थी। I had never read the Bible in my life. और मेरा एक दोस्त है जो मेरे घर में आया और उसने मुझे यीशु के बारे में बताया। And a friend of mine came home and he told me about Jesus. मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया I mocked him really क्योंकि मुझे लगा था वो मेरा धर्म बदलने आया है। because I thought he has come to convert my religion. यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आया। Jesus does not convert anyone's religion. यीशु मसीह